So good morning to all students. Yesterday we were discussing chapter 5 lines and angles, right? So we discussed the type of angles, corresponding angles, alternate interior exterior angles, co-interior angles, and I told you to revise. I hope you have revised. Now open page number 106. Try these. Name the pair of angles in each figure. You are going to write that what type of angle it is, and you are going to write it in the book only. See students, here these are the two lines but not parallel. This is angle 1 and this is angle 2. Now what type of angle it is? These are line ke upar on the same side of transversal. So these are corresponding angles. Corresponding angles. Write down. Now the angles here are not equal. Yes, Bhavya? I want to answer. कुछ पूछना भव्या? No, ma'am. Okay. I'm answer If in this question it is asked that whether angle 1 equal to angle 2, then clearly the answer is no, because we can see the lines are not parallel. ये इधर को है, ये थोड़ा नीचे को है. No doubt the angles are corresponding angles, but here the angles are not equal as the lines are not parallel. The angles will be equal, that is the corresponding angles will be equal only if the lines are parallel. ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा. These are two lines and this is the transversal, right? एक एंगल यहाँ है 3 और दूसरा एंगल यहाँ है 4. Now you can see both the angles are inside the two lines. अंदर है, एक ट्रांसवर्सल के इधर, एक ट्रांसवर्सल के इधर. So it is what type of angle? Alternate interior angles. Write down. Alternate interior angles. C part. These are the two lines and this is a transversal. Here we are having angle 5 and here we are having angle 6. Now, what type of angles are these? Who will tell me? Raise your hand. Yes, Bani. Yes, ma'am. They are co-interior angles. Yes, very good. Everyone lower your hand. They are co-interior angles. Angles on the same side of the transversal. Interior angles on the same side of transversal. They are, write down, co-interior angles. Now here the sum of co-interior angles is not 180. Yesterday I told you that the sum of co-interior angles is 180 only if the lines are parallel. अगर ऐसे दो parallel lines हैं और ऐसे transversal, तो ये दो angles हैं, इनका sum क्या होगा? 180. They are co-interior angles and then their sum will be 180. Why? Because the lines are parallel. But if the lines are not parallel, then of course these angles are co-interior angles, but their sum is not 180. Fine. अभी हमने सिर्फ टाइप ऑफ एंगल बताना है, तो इट इज को इंटीरियर एंगल. नंबर 4. आई होप द एंगल्स आर क्लियर टू यू ऑल. इसके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं बेटा. एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे. दीज आर द टू लाइंस एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल. अब देखो, ये देखो, ये यहाँ है 7 और यहाँ है 8. अब ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे लाइन के ऊपर और लाइन के ऊपर, दोनों एंगल्स लाइन के ऊपर हैं, मतलब ऊपर वाली साइड लाइन के इधर वाली साइड एंड टचिंग द ट्रांसवर्सल, लाइन के राइट साइड टचिंग द ट्रांसवर्सल. सो दे आर व्हाट टाइप ऑफ एंगल?
Again, they are corresponding angles. Students, be on time. 10:10 पे period start हुआ था. It's 10:18. Still your students are coming in the class. मैं बार-बार admit ही करती रहती हूँ तुम लोगों को. I don't understand why you can't be in the class on time. Fine. कृष्णा, कनक, भव्या, प्रेरणा, अगर कोई डाउट नहीं है बेटा आंसर देने के लिए हैंड रेज किए थे तो लोअर कर लो. यस कनक. No doubt, ma'am. Then lower your hand. Fine beta. Similarly, you can see the fifth part in your book. Angle 9 and angle 10. दोनों अंदर हैं. एक ट्रांसवर्सल की एक साइड पे, दूसरा ट्रांसवर्सल की दूसरी साइड पे. So it is again alternate interior angles. Write down. Alternate interior angles. Fifth part, angle 9 और 10 वाला. Then the last one. Who will tell me the last? 11 and 12. Yes, Rishita, बोलो क्या पूछना है? यस मैम. मैंने पूछना था जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं मैम वो सेम साइड पे होते हैं. जैसे ये और मैम जो कॉरस्पॉन्ड अगर अलग अलग साइड पे होंगे बेटा वो तो फिर ऑल्टरनेट हो जाएंगे. सेम साइड पे ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे और अंदर. अगर ट्रांसवर्सल की दूसरी तरफ होंगे वो तो ऑल्टरनेट हो जाएंगे. अंदर की तरफ सेम साइड पे है तो को इंटीरियर. तो यस, सिक्स्थ पार्ट का आंसर कौन बताएगा? ऋषिता आप बता दो. 11 और 12 एंगल कैसे एंगल्स हैं? यस कृष्णा. मैम को एक्सटीरियर. नो. को एक्सटीरियर कुछ नहीं होता. को इंटीरियर होता है, को एक्सटीरियर कुछ नहीं होता. हाँ जी सुहाना. एंगल्स. एडजस्टेंट एंगल्स. यस, दे आर एडजस्टेंट एंगल्स. आप लिख सकते हो दे आर एडजस्टेंट एंगल्स. लुक हियर ऑन द बोर्ड. ये कैसे एंगल्स हैं? दे आर एडजस्टेंट एंगल्स, साथ साथ वाले एंगल्स. ठीक है. नाउ नेक्स्ट. भव्या एंड कनव, लोअर योर हैंड बेटा. इट्स नो डाउट. इसको आप टिक कर लो. पेज नंबर ये रीड कर लेना. पेज नंबर 106 पे ट्राई दीज के ऊपर लिखा हुआ है ना बेटे, ऑल्टरनेट एंगल्स 3 and 6 हैव डिफरेंट वर्टिसेस. इसको पढ़ लेना. देन कम टू पेज नंबर 107. देयर इज अ बॉक्स. If two parallel lines are cut by a transversal, each pair of corresponding angles are equal in measure. This is what I have taught you, that corresponding angles will be equal only if the lines are parallel. ठीक है. ये आप बुक में टिक कर लो ताकि फिर आप जब रिवाइज करो तो इसको पढ़ सकते हो. 108 पेज पे देखेंगे. Again there is a box. If two parallel lines are cut by a transversal, each pair of alternate interior angles are equal. We have learned what are alternate interior angles. Now that angles will be equal only if the lines are parallel. ठीक है बेटा. Next box में लिखा है if two parallel lines are cut by a transversal, then each pair of interior angles on the same side of transversal. ये कैसे angles हैं? Co-interior. And interior angles on the same side of transversal are supplementary. कल लिखवा दिया था आपको that if the two lines are parallel, then co-interior angles are supplementary. Supplementary means उनका सम क्या है? 180. So it is all what we have discussed. Now come to page number 109. Yes, Bhavya, बोलो बेटा.
यस मैम। मैम मेरे को एक डाउट था मैम, जिस जो अभी हमने पिछले ट्रायल्स किए हैं मैम, उसमें जो एंगल 11 और 12 है मैम, वो एक्सटीरियर एंगल्स नहीं हो सकते? हो सकते हैं, लिख सकते हो। ओके मैम, ओके मैम। इंटीरियर नहीं ना, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होता है, ट्रांसवर्सल के इधर, एक ट्रांसवर्सल के इधर, लेकिन दोनों लिख सकते हो उसको एक्सटीरियर एंगल्स भी। यस मैम, ओके। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स इज आल्सो करेक्ट। नेक्स्ट बेटा पेज नंबर 109, फर्स्ट फिगर, this is 60 degree, we have to find this x। ऐसे बेटा आपके पास क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको एंगल्स फाइंड करने होंगे। एंगल्स आप तभी फाइंड कर सकते हो अगर आपको जो एंगल्स हैं वो पता हो कि ये कौन सा एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग कौन से हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर कौन से हैं। सो दीज आर द टू लाइंस, और इन्होंने लिखा हुआ है दैट L is parallel to M, ये बताया हुआ है कि L के ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल। So obviously these are what type of angles? These are alternate interior angles, and since the lines are parallel, so therefore they are equal. I am writing this ताकि जब आप इसको रिवाइज करो तो आपको याद रहे that why these angles are equal. But if this question comes in the exam, then you can directly write down x की वैल्यू क्या है और उसका रीजन। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। since L is parallel to M, therefore x is equal to 60 degree ऐसे आपने लिखना है, ठीक है। x is equal to 60 डिग्री, रीजन के बगैर कोई नंबर नहीं है। अगर आपने सीधा लिख दिया x 60 डिग्री, then no marks will be given. Fine. Now next. Again, ये दो लाइंस हैं, this is 55 and this is y। पैरेलल लाइंस जैसे मर्जी बनी हो, चाहे ऐसे बनी हो चाहे ऐसे बनी हो, ठीक है। ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है। So clearly y is equal to 55 degree alternate interior angles. Write down. Here the lines are A and B. Since A is parallel to B, y is equal to 55 degree alternate interior angles. Yes, Kanav? मम्मी हमने बुक पे लिखने के लिए नोट करना है। ये अभी बुक पे लिख लो, होमवर्क पार्ट दूंगी वो कॉपी पे करना। ओके। वैसे रफ कॉपी में लिख, अभी बुक में लिख लो, छोटा छोटा सही है ना। थर्ड पार्ट everyone will see in the book. बुक में देखेंगे थर्ड पार्ट। L1 L2 be two lines, T is transversal। L1 L2 बुक में देखे बेटा लाइंस हैं जो कि पैरेलल नहीं है, कहते दो लाइंस हैं and T is transversal। Is angle 1 equal to angle 2? Who will tell me? Yes, who will tell me? Yes, Suhana? No, angle 1 is not equal to angle 2. Why? Reason हमेशा देना होता है। Then because the lines are not parallel. Yes, write down everyone. No, because L1 is not parallel to L2. No, because L1 is not parallel to L2.
No, because L1 is not parallel to L2. Fine. So fourth, fifth, and sixth. All these three parts you are going to do in your fear notebook. Fourth, fifth, and sixth. 4, 5, 6 ऐसे मार्क नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है. We will discuss once. Let us discuss. कॉपी में भी करोगे, मैं डिस्कस भी कर रही हूँ. Now given that L is parallel to M, these lines are parallel and T is transversal. We have to find angle Z. Who will tell me? Come on. What type of angles are these? So what will be the value of Z? Anyone? Yes, Prerna. Ma'am, 60 degree. Why? Ma'am, because it's vertically opposite. Vertical opposite. ये आप लोगों के पास जो पुरानी बुक है ना, उन्होंने गलत लिखा हो, तुम वहां से देख के आंसर बता रहे हो. Yes, Suhana. Because they are co-interior angles. What is the value of Z? 60 degree. 60 degree? कैसे? They are co-interior angles. Co-interior angles are equal? Yes. And the Suhana? lines L and M are parallel. अगर ये पैरेलल लाइन है, ये को इंटीरियर एंगल्स हैं ऑब्वियसली. तो को इंटीरियर एंगल्स क्या इक्वल होते हैं? कब लिखवाया ये मैंने आपको? यस भव्या. Ma'am, other angle will be 120. यस, व्हाई इट इज 120? Ma'am, because two parallel lines have sum of 180. 180 minus 60. Because the sum of co-interior angles बेटा alternate angles equal होते हैं अगर lines parallel हो. Corresponding angles equal होते हैं अगर lines parallel हो. But जो co-interior angles होते हैं वो equal नहीं होते. उनकी प्रॉपर्टी क्या है? ध्यान से सुनो, समझो अच्छे से. All these angles properties it will be used in 7th, 8th, 9th, 10th. एंगल्स ही नहीं पता होंगे आपको तो आप कैसे अगली क्लासेस में जाके अच्छा परफॉर्म करोगे? ध्यान से समझो, सुनो, ध्यान से समझो. दोनों एंगल्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सो देयरबाय दे आर को-इंटीरियर एंगल्स. एंड को-इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री. 60 और Z को मिलाकर 180. तो 180 में से 60 को माइनस करेंगे, Z will be 120. You will write, since L is parallel to M, therefore 60 plus Z is 180 degree. रीजन लिखना है जरूर. Co-interior angles. ठीक है, तो Z will be 60, उधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा. Z will be 120 degree. जिनकी बुक्स में 60 लिखा है वो गलत है. सॉरी. All right. So I'm going to rub the figure. You can note down the solution. Rishita, Nitya and Kanav. If no doubt, then please lower your hand.
Now see the next one. Now here these lines are parallel and this is a transversal. Now clearly ये कैसे एंगल्स हैं? लाइन के ऊपर एक ही साइड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. एंड क्योंकि ये लाइंस पैरेलल गिवन है, तो क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं, देयरफॉर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. x is equal to 120 degree. Write down. x is equal to 120 degree. ब्रैकेट में लिखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. x is equal to 120 degree. ब्रैकेट में रीजन लिखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. नेक्स्ट, now look here on the board everyone. L is parallel to M and P is parallel to Q. ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं. We have to find A, B, C, D. सबसे पहले हमें 60 गिवन है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं. What are the type of angles A and 60? Co-interior angles? Yes. Angles on the same side of the transversal. अगर बेटा ये दोनों का सम 180 है तो ये 120 आ जाएगा. ए आ गया हमारे पास. अब बी सी डी, ध्यान से सुनो, बोर्ड पे देखो, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल. अच्छा, अब इसके साथ दो तरीके हैं. या तो इसको मार्क कर लो एंगल 1. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 1. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये लाइन के इधर, ये लाइन के इधर. 1 अगर जो 1 है वो डी होगा. फिर ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे 1 प्लस बी का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री. लीनियर पेयर करवाया हुआ है, जो बी आएगा वही सी आएगा. आई होप इट इज क्लियर. समझ आया आपको? नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट अगेन. आई विल बी सॉल्विंग इट एंड विल बी एक्सप्लेनिंग अगेन. बोर्ड पे देखेंगे बेटा. सिंस P is parallel to Q and L is transversal, write down. Since P is parallel to Q, ये दोनों, इसको भूल जाओ, ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है. बोर्ड पे देखो बेटा, दोबारा देखो. P is parallel to Q and L is transversal. इसको भूल जाओ. Therefore, A plus 60 degree is 180 degree. Co-interior angles. A कितना आ जाएगा? 120. अगर आपने इधर देखो, बोर्ड पे देखेंगे सारे बच्चे, अगर बेटा आपने ये एंगल 1 नहीं मार्क करना तो आप सीधा भी लिख सकते हो. ये देखो, एंगल ए एक पैरेलल लाइन के इधर है बाहर और डी इधर, और मतलब एंगल डी, ए और डी कैसे हैं? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर आल्सो इक्वल. तो सीधा लिख सकते हो ए इज इक्वल टू डी 120 अगर आपको क्लैरिटी है. नहीं तो सारे बच्चे यहाँ पर एंगल 1 मार्क करेंगे
बेटा आई एम गोइंग टू रब द फिगर. चलो ये रब करती हूँ, फिर फिगर से समझ आ. इसके आगे आपने लिखना है since L is parallel to M, therefore A is equal to angle 1. Corresponding angles now D is equal to angle 1. D is इधर देखो बेटा, A 1 के इक्वल है. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, A की वैल्यू क्या थी 120, तो 1 की एंगल 1 की वैल्यू भी क्या है 120. D भी कितना हो गया 120. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. बोर्ड पे देखें प्लीज. A is equal to 1, corresponding 1 is equal to D. ये सामने सामने है ना. अब मैं निकालूंगी C लीनियर पेयर से, फिर C को B के इक्वल लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. नाउ C plus D is 180. लीनियर पेयर D की वैल्यू 120 है, पुट कर दी. And B is equal to C. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. जैसे मैंने ये प्रॉपर्टी लगा के फाइंड किया, आप कोई और प्रॉपर्टी लगा के फाइंड करो तो वो भी करेक्ट है. यस भव्या. एक्सक्यूज मी मैम, हम जैसे जो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं, एंगल डी और ए, तो मैम फिर हम डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जो एंगल डी है वो एंगल ए की इक्वल है, तो एंगल डी 120 हो गया. हाँ जी बिल्कुल सीधा. ओके. वो तो कई बार Okay. एक्सटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो एकदम से माइंड में क्लिक नहीं करते स्टूडेंट्स के, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के. तो इसलिए मैंने ये एक वे आपको बता दिया है, लिखवा दिया है, और वो भी वर्बली बता दिया कि सीधा लिख दो A और D यस बराबर. तो ये वन को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. ओके मैम, थैंक यू. लोअर योर हैंड भव्या. फाइन. नाउ फर्दर. नाउ एवरीवन, page number 110. Try these. Look in the book everyone. बुक में देखेंगे सारे. ये देखो L और M दो लाइंस हैं और T ट्रांसवर्सल. कहते क्या L और M पैरेलल हैं? आप देख सकते हो कि ये जो 50-50 डिग्री है, ये कैसे एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है? इक्वल. हम कहते हैं ना, ध्यान से सुनो, हम कहते हैं कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे? इक्वल. तो इसका जो रिवर्स है वो भी ट्रू होता है कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस क्या होंगी? ऑब्वियसली पैरेलल. फाइन. तो लिखो, इधर लिखा है ना, इज L पैरेलल टू M. वाई? राइट डाउन. यस, बिकॉज alternate interior angles are equal. Write down beta. Yes, because alternate interior angles are equal.
नेक्स्ट देखेंगे बोर्ड पे बच्चे, नेक्स्ट पार्ट। सिर्फ फिगर को देख के नहीं आपने बताना, आपने एंगल्स के अकॉर्डिंग रीजन देना है। ये देखो, ये 50 है, ये 130। नाउ यू हैव टू टेल whether the lines are parallel or not, whether L is parallel to M or not. Now you have done the property that L will be parallel to M if alternate interior angles are equal, if corresponding angles are equal, or if the co-interior angle makes 180. अब ये अंदर वाला है, ये बाहर वाला है, अब क्या करें? This is a straight line. अगर ये 130 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? एंगल 1। ये लीनियर पेयर बनाता है, या फिर ऐसे कर सकते हैं, दो तरीके हैं। ये 130 है तो ये भी 130, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब ये 130 और 50 कैसे एंगल्स हैं? को इंटीरियर, और इनका सम कितना है? 130 plus 50 is 180. Since the sum of co-interior angle is 180, therefore the lines are parallel. एक ये तरीका है, या फिर ये लीनियर पेयर से ये निकालो, ये आएगा 50, ये भी 50, ये भी 50, alternate angles are equal, therefore the lines are parallel. तो आप किसी मर्जी तरीके से कर लो, इसको लिख लो एंगल 1, एंगल 1 is 130, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल पूरा लिखोगे आप। नाउ 50 plus angle 1, since sum of co-interior angle is 180, therefore L is parallel to M. लिखो शाबाश। इसको 1 दे देना 130 के ऑपोजिट वाले को। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट ये वाला, और थर्ड पार्ट खुद करोगे। थर्ड पार्ट में एक्स निकालना है, और थर्ड पार्ट में अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? दैट द लाइंस आर पैरेलल। गिवन है लाइंस आर पैरेलल, तो वो कैसे एंगल्स है? को इंटीरियर एंगल्स हैं। 180 में से 70 को माइनस करोगे, यू विल गेट दी वैल्यू ऑफ एक्स। फाइन। सो do your homework, and the student those who have not sent me the holidays homework, send it today. Today is the last day. Tomorrow तो मैंने बिना देखे तुम्हारी पीडीएफ बाहर से डिलीट कर देनी है, ठीक है? और ये आपको पता है कि फर्स्ट 2 days में ही होमवर्क सेंड करना है। If anyone will send me the homework tomorrow without looking, I will delete the PDF. Fine. चलो, do your homework properly. See you tomorrow.